My name is Dr. Mohammad Hasib. I am working here as a consultant glaucoma in POB Eye Hospital, Karachi. So, our topic of presentation is trabeculectomy with MMC. MMC means metamycin C. Got the hands-on trabeculectomy. So, we have got two videos. So, you will concentrate on the videos in order to perform the hands-on perfectly. Okay. So, my topic is trabeculectomy with MMC. Okay, before starting the topic of trabeculectomy is under the umbrella of filtration surgeries. So filtration surgeries had got three types: full thickness, partial thickness, and non-penetrating surgeries. So today our topic is partial thickness, in which we are going to cover the trabeculectomy. Okay, understand? So by introduction, in the trabeculectomy, we are going to make a small fistula between anterior chamber and subtenon space. So we are going to make a fistula between anterior chamber and subtenon space in order to lower the IOP. So by definition, it is a surgical procedure featuring a partial thickness scleral flap that creates a fistula between anterior chamber and subconjunctival space for filtration of aqueous and creation of conjunctival bleb in an effort to lower the IOP. So our main aim is to make a fistula, and which is going to create the communication between the anterior chamber and the subtenon space. So this is the mechanism. First of all, we will create the fistula between the anterior chamber and the subtenon space. So aqueous from the anterior chamber goes from the fistula into the subtenon space, and from the subtenon space it is collected to the episcleral and the conjunctival veins, and from there it will drain into the superior ophthalmic veins. So it is written here, allows aqueous outflow from the anterior chamber to the subtenon space through the fistula and the scleral flap borders, and finally collected into the episcleral and the conjunctival veins. A functional filtrating bleb forms over the sclerotomy site, which appears as a blister-like elevation of the conjunctiva, which we call the bleb. Indication of trabeculectomy is, as you will all know, failure to conservative therapy to achieve good IOP control, avoidance of excessive polypharmacy, progressive deterioration of despite the seemingly adequate IOP control, poor compliance, primary therapy if the patient wants, patient's preference if they want surgery and avoid the medications. And the contraindications are blind eye, active inflammation, active anterior chamber new vessels, and extensive conjunctival scarring, and the thin sclera prior surgery, just like chemical injuries. What is the preoperative evaluation? You have to evaluate the patient from the vision up to the optic disc. You will take the vision, you will take the IOP, you will take the gonioscopy, you will take the fundus photography, you will take the optic nerve head analysis by the HRT or OCT, and you will check also the IOP. Take the complete systemic evaluation. You will rule out the diabetes or hypertension or control it. Medication which affects the ocular surface and disrupt the blood aqueous barrier should be stopped 1 to 2 weeks before surgery, and prophylactic peripheral iridotomy in angle closure diseases. And conjunctival mobility, you will must check. Mobility should be checked preoperatively to plan the site of surgery. You will put pilocarpine eye drops before surgery in order to constrict the pupil. Perioperatively, some of the surgeons give the betadine drops for the vasoconstriction of the vessels. Scrub with pyridine, and especially in the uveitic glaucoma, you will put the patient on steroids in order to reduce the inflammation or to stop the inflammation. You will give anesthesia. Most of the surgeons giving the periorbital or the retrobulbar. Most of the surgeons are giving the facial blocks. Most of the surgeons are doing in the general anesthesia.
while the topic anesthesia and the subconjunctival anesthesia is very difficult. Now we are playing the picture, we are playing the movie now, small movie. Sorry. This patient we will operate. On the video, please. Okay. This is the video. We performed this case last week under the general anesthesia. We are applying the bridal sutures. Now we are making dissection of the conjunctiva and the tenon both together. This is very important step. You have to take the conjunctiva and the tenon both together. Separate the conjunctiva and tenon from the limbus. And you will give time on the dissection. This is very important because the bleb is formed here. Bleb will be formed here. Now we are doing the deep dissection. This step is very, very important. We are giving the dissection between the recti muscles, between the superior rectus and the lateral rectus, then between the superior rectus and the medial rectus. And after that, we are applying the cautery to the bleeders. You have to create the all avascular zone. Now you are making the skill flap partial thickness by 11 number blade because the 11 number blade is sharper, and by 15 number blade you are going to dissect the sclera, and you have to take it towards the limbus until the color of the deep side will be changed up to bluish color. After that, you will apply the metamycin C. The role of the metamycin C is an anti-fibrotic agent to reduce the post-operative fibrosis of the bleb. You will apply it for the 2 minutes, then wash with the normal saline. 20 ml normal saline is sufficient for the washing. And this is a very important step. You will do the deep sclerotomy by 11 number blade. This is a very difficult step, but you will learn with the passage of time. You will put the small amount of Macolol drops into the anterior chamber in order to constrict the pupil. Then you will complete the deep sclerotomy, and you will do the peripheral iridectomy. The size of the peripheral iridectomy must be larger than the deep sclerotomy. Now you are taking the air from the anterior chamber. A small air bubble will be remain in order to form the anterior chamber. Now you are closing the flap with the sutures. Most of the surgeons are preferring the 8-0 Weichel. Some are choosing the 8-0 Silk depending upon the skills. Most of the surgeons are doing the 2 sutures. Most of the surgeons are doing the 4 sutures depending upon the case to case. But the sutures must be tight here. We are applying the 2 sutures. And look, the knot is towards the site of limbus. At the end, you will take the knot towards the site of fornix in order to reduce the post-operative inflammation. ये आपने कट किया, आप देखें नॉट हमने इसको बरी किया मगर ये स्टेप था नहीं इसके अंदर. Now you will कंजक्टिवा को आप सूचर करेंगे विद द लिम्बस विद द कॉर्निया ताकि अच्छे सूचर आ जाए आपके पास. आप देख रहे हैं आपका यहाँ पे ब्लैब भी बन रहा है आपका ना, ब्लैब भी बना हुआ है, पीआई भी विजिबल है, एंटीरियर चैम्बर इज फॉर्म्ड. 80 सेम सूचर, 80 सेम सूचर. ये हमने यहाँ पे एक लिम्बस पे टाइप किया,
10 o'clock पे या 11 o'clock पे, और एक हम ट्राई कर देंगे इसको एट 2 o'clock पे। ये मेरे ख्याल से वीडियो अराउंड 4 to 5 मिनट्स की थी, तो हमने ये ऑपरेशन अराउंड 15 मिनट्स में कंप्लीट किया था। आखिर में जो रिमेनिंग आपका कंजक्टिवा है उसको आप सूचर कर दें। यहाँ पे आप एक सूचर भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है तो यू विल गिव 2 सूचर्स इन ब्लैक जी, डिपेंडिंग अपॉन मगर इट्स बेटर टू अप्लाई द 2 सूचर्स, क्योंकि रेडियल थोड़ा सा भी आ जाए तो इट्स बेटर टू अप्लाई द 2 सूचर्स है। तो आप एट द एंड ऑफ द सर्जरी देखेंगे कि ब्लैप भी बना हुआ है, डीप स्क्रोटमी साइड भी विजिबल है, यहाँ पे एंटीरियर चैम्बर भी फॉर्म्ड है, थोड़ा सा एयर बबल हमने छोड़ा हुआ है ताकि एंटीरियर चैम्बर फॉर्म्ड रहे, और ये इतना एयर बबल है कि ये पीपल को ब्लॉक नहीं करेगा, ना पीपल ब्लॉक करेगा ना पीआई ब्लॉक करेगा। सेकेंड डे आपको बिल्कुल क्लियर मिलेगा आपको। पोस्ट ऑपरेटिवली आप इसको वॉश करने के बाद यू विल गिव द डेक्सा, लुक द आई सॉफ्ट, आपने डेक्सा इंजेक्ट किया, एंड द डायलेटिंग आई ड्रॉप्स, ओके, एट्रोपिन आई ड्रॉप्स और साइक्लोफेन आई ड्रॉप्स। Now any question? Can we use mitomycin swab की जगह? Can we inject the mitomycin sub-injector? No. Never. Nowadays it is getting. No. Actually, nowadays, what I am telling you, what happened nowadays, some people they are what they are doing the trail on the first day, and the second day some people they are injecting small amount of mitomycin. इवन द मेटामाइसिन सी को आपको लिम्बस पे भी अटैच नहीं करना, क्योंकि लिम्बस पे आपके स्टेम सेल्स होते हैं। अगर आपने लिम्बस पे भी अटैच किया मेटामाइसिन सी के स्वाग को, तो उसकी पोस्ट ऑपरेटिवली जो हीलिंग होगी वो कम हो जाएगी आपकी। तो मेटामाइसिन सी को हमेशा आपको अप्लाई करना है अंडर द टिनॉन, अंडर द कंजक्टिवा भी नहीं लगाना आपको, अंडर द टिनॉन नहीं। अगर आप वीडियो देखें प्रीवियसली अगर हम लगाते हैं, अच्छा ब्राइडल सूचर की भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही लगा नहीं सकते तो आप इसमें आपको प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिलेगा, आपको स्पेस नहीं मिलेगी। ये जो आप डिसेक्शन कर रहे हैं ना, अगर आप ये स्टेप देखें तो हमने इनिशियली हमने कंजक्टिवा को और टिनॉन को एक साथ ले लिया। आप देखें ना, नीचे से वाइटिश स्ट्रक्चर आपके विजिबल है, इट इज़ द टिनॉन। अगर आपने अप्लाई करते हैं मेटामाइसिन सी अंडर द कंजक्टिवा, तो पोस्ट ऑपरेटिवली थिनिंग ऑफ द ब्लैप के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो उसको बिल्कुल थिन कर देगा, जी, वो उसको थिन कर देगा, और बाद में ब्लैप की I don't know how they are using mitomycin in injectable form, because you'll have to just wash it out. या तो उसकी देखें, अगर कोई यूज़ करता है तो उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होगी। नहीं, वी आर डूइंग, हम जो कंसंट्रेशन यूज़ कर रहे हैं 0.2 to 0.5 मिलीग्राम पर ml, माइट भी उसकी कंसंट्रेशन इतनी लो हो के आप उसको कर सकेंगे। सर दूसरी चीज़, आपने स्लैब में सूचर लगाए हैं, तो ये कोई ऐसे सूचर भी लगा सकते हैं जिसको इसका हेड रखते हैं, हो जाए तो मतलब कि उसको बाद में हम रिलीज कर सके। देखिए वो लेज़र भी काम होता है। आप अगर आप टाइट सूचर्स हैं तो हमारे पास लेंस अवेलेबल हैं जो कि सूचर लाइसिस कर सकते हैं। और नंबर 2, आजकल एडजस्टेबल सूचर्स भी आप लगा सकते हैं कि पोस्ट एडजस्टेबल सूचर्स भी लगा सकते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिवली डिपेंडिंग अपॉन योर एक्वस आउटफ्लो के पास आप उसको क्या कहते हैं टाइटिंग उसको कर सकते हैं, उसको टाइटिंग कर सकते हैं उसको। सर कॉर्निक ब्रेस और लिम्बर ब्रेस में कौन सा ब्रेस ज़्यादा आगे तक चलता है? देखिए अगर आप कंपैरिजन करें ना, तो डिपेंडिंग अपॉन द सर्जन्स, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्जन। मगर अक्सर कहते हैं कि जो फोनिक्स बेस है वो ज़्यादा सेफ़ है, फोनिक्स बेस, क्योंकि आप जो इसमें डिसेक्शन कर रहे हैं ना बहुत कम कर रहे हैं। अच्छा, लिम्बल बेस में तो आप अराउंड 12 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर पीछे जाके डिसेक्शन करेंगे। और देखें, आपने पोस्ट ऑपरेटिवली जो सूचर सप्लाई करेंगे क्या कहते हैं फोनिक्स बेस के अंदर, उसमें आप हार्डली 2 सूचर्स और 3 सूचर्स अप्लाई कर रहे हैं, और वो विजिबल भी है। अब दूसरे जो आप करते हैं लिम्बल बेस करते हैं, उसमें तो बाकायदा आपको पूरे कंटिन्यूस सूचर्स आप अप्लाई करना पड़ेंगे आपको।
और नंबर लास्ट बात ये है कि हमें यहाँ पे जो लिम्बस में ना स्टेम सेल्स होते हैं, तो स्टेम सेल्स की हीलिंग बहुत अच्छी होगी अगर आप कंजक्टिवास पे रखते हैं और एमएमसी को सही तरीके से वॉश करते हैं, तो इसकी हीलिंग बहुत प्रॉपर होगी इसकी। दिस इज़ द डिफरेंस। एक रीज़न ये भी देते हैं कि अगर आप मतलब फॉनिक्स पे देते हैं तो मतलब कि फिर जो आपका मतलब कि ग्रेविटी की वजह से जो फ्लो होता है अगर लीक हो एंडोग्राम में, तो वो मतलब कि लीकिंग इतनी नहीं आती है लैब में। ये रीज़न देते हैं मतलब। इसमें जो है ना सारा देखिए सीपेज सर्जन थोड़ा की बहुत वो है। लीकेज होता है इस इंजेक्शन में, मगर नॉर्मली इट विल रिजॉल्व विद इन अ वीक, क्योंकि उसकी हीलिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि वो हो जाता है, रिजॉल्व कर जाता है। और थोड़ा सा एक और चीज़ ये है कि ये जो आप लिम्बस बेस्ड और फॉनिक्स बेस्ड जो आप कर रहे होते हैं ना, उसमें टाइम का बहुत फर्क है। जब आप लिम्बस बेस्ड आप सर्जरी कर रहे होते हैं, उसके अंदर आपकी स्विचिंग बड़ी मेटिकुलस होनी चाहिए और दैट टेक्स टाइम। तो जिनको ज़्यादा सर्जरीज करनी होती हैं, नॉर्मली दे प्रेफर टू गो विद फॉनिक्स बेस्ड। उसमें चूँकि आपने दो स्विचर्स आपने दोनों कॉर्नर्स पे लिम्बस पे लगाना होता है, और जो रेडियल कट है आपने सिर्फ उसको श्योर करना होता है, मेक श्योर। एक स्टेप इसमें मुझे लगा कि ये कम है। उसमें हम नॉर्मली ये करते हैं कि जब आप एंट्री देते हैं एंट्री चैम्बर में, तो आप लेफ्ट साइड से साइड पोर्ट से एक आप पैरासिंथेसिस आप बनाते हैं। ये साइड पोर्ट्स को एंड ऑफ द सर्जरी पैरासिंथेसिस से आप फ्लूइड को गश करते हैं, वो उस पोर्ट से आके ब्लड को ऑन द टेबल फॉर्म करता है। आप उसी वक्त आप फ्लोरोसिन स्ट्रिप लगा के सिग्नल टेस्ट को चेक कर लेते हैं कि कहीं पे एक आध सुचर की मजीद ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन डॉक्टर हसीब की ज़ाहिर है कि एक्सपीरियंस है और बहुत मिनिमल कट्स के साथ इन्होंने ये किया है, तो इनको पता है कि इसके अंदर कहीं पे कोई लीकेज के चांसेस नहीं है। वरना आमतौर पे उस पैरासिंथेसिस से आप फ्लूइड गश करके ब्लड फॉर्म करके आप उसी वक्त देख लेते हैं कि एंटीरियर चेम्बर मेंटेन होना चाहिए। दो तीन चीज़ें देखनी होती हैं कि आपके एंड ऑफ द सर्जरी आपका चेम्बर मेंटेन हो। अगर ओवर फिल्ट्रेट कर रहा होगा तो एंटीरियर चेम्बर आपका फ्लैट हो जाता है, विच विल क्रिएट प्रॉब्लम पोस्ट ऑपरेटिवली। तो आपका इतना टाइट भी नहीं होना चाहिए स्क्लेर फ्लैप कि वहाँ से फिल्ट्रेशन ही ना हो रही हो, ब्लड भी ना बन रहा हो। तो ब्लड भी बने, एंटीरियर चेम्बर भी आपका मेंटेन हो जाए और वहाँ पे सिटल नहीं हो। तीन चीज़ें चेक की, आप उसके बाद टेबल से उठा सकते हैं। शायद इसलिए ये लोग कहते हैं कि जितना भी एंटीरियर चेम्बर की फिजियोलॉजी को मतलब चेंज ना करें ना, तो इट विल बी बेटर टू फॉर्म द कैटरेक्ट। तो इसीलिए मतलब यूजुअली मतलब एंटीरियर नॉर्मली देखें कि अगर आप एंटीरियर चैम्बर पैरासिंथेसिस करते हैं, तो मैंने अक्सर देखा कि पोस्ट ऑपरेटिवली वहाँ पे सैनिकीज बन जाते हैं। अगर आप थोड़े केसेस की सिलेक्शन करें ना, तो पोस्ट ऑपरेटिव जहाँ फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग द पैरासिंथेसिस फ्रॉम द 9 o'clock और 3 o'clock से, वहाँ पे आप अक्सर देखेंगे RS आके, क्योंकि प्रेशर अगर थोड़ा सा ज़्यादा होगा स्टक कर जाएगा। फिर अगेन प्रॉब्लम, यानी आप मल्टीपल एनाटमीज़ को जितना आप ज़्यादा टच करेंगे उतना ज़्यादा आप फ्यूचर में प्रॉब्लम्स वो करेंगे, फेस करेंगे। तो ये हमारा ये था कि हमने एक लेसर टाइम के अंदर और कम से कम उसकी एनाटमी को डिस्टर्ब करते हुए, बेसिक क्या था, वी आर गोइंग टू मेक द फिस्टुला। हमें फिस्टुला बनाना है बिटवीन द एंटीरियर चैम्बर एंड द सबक्लिनोन स्पेस, ताकि वो वर्किंग करे और पोस्ट ऑपरेटिवली हमारा जो ब्लैब है वो फंक्शन हो। पोस्ट ऑपरेटिवली इसके ड्रॉप्स की क्या तरतीब रखते हैं, कितने दिनों तक आप देखिए जो ड्रॉप्स हमारे पास जो हैं एंटीबायोटिक एंड स्टेरॉइड्स, इनिशियली वी कैन गिव द 2 hourly, बट मैं तो आफ्टर 1 day और 2 days के बाद 4 times a day कर देता हूँ। साइक्लोप्लेजिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन गिव अप टू 1 week, क्योंकि जितने स्ट्रॉन्ग इनिशियली हम ये करते हैं कि पेशेंट को एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन पोस्ट ऑपरेटिव 1 ड्रॉप एट्रोपिन डाल देते हैं, तो वो 7-8 दिन 5-6 दिन अपना काम करती रहती है ना। और स्टेरॉइड पोस्ट ऑपरेटिवली कितने वीक्स कंटिन्यू रखते हैं? आइडियली स्टेरॉइड्स को 2 months तक करना चाहिए, एटलीस्ट 2 months तक करना चाहिए। एंटीबायोटिक यू कैन स्टॉप आफ्टर 3 weeks or 4 weeks, मगर स्टेरॉइड्स को यू हैव टू कंटिन्यू अप टू 2 months तक करना चाहिए। लो डोज में हो, लेकिन आपको एक और फंक्शनल ब्लड के लिए पोस्ट ऑपरेटिव के लिए आपको मस्ट है कि आप यू विल एग्जामिन द इंट्राऑपरेटिव प्रेशर, यू विल एग्जामिन द ब्लैब। Ideally, each and every visit you can do the gonioscopy in order to see your deep hysterectomy and PI side, each and everything will be there. Okay, thank you.